Dear students, our next lecture is about two group CC disconnections, 1,3-difunctionalized compounds. In this lecture, we will discuss about introduction to two group disconnections with respect to 1,3-difunctionalized compounds, common strategies, guidelines used for disconnection in 1,3-difunctionalized compounds, 1,3-dicarbonyl compounds, beta-hydroxycarbonyl compounds, and alpha-beta unsaturated carbonyl compounds, also known as enones. First of all, introduction to two group disconnections with respect to 1,3-difunctionalized compound. In this lecture, we are going to discuss the retrosynthesis and forward synthesis of 1,3-difunctionalized compounds. As you know that the difunctionalized compound consists of two functional groups. The relative position of two functional groups is 1, 3. If one group is present at position number 1, the second group will be present at position number 3. You can see the example here. This is the example of 1,3-difunctionalized compound. This is one functional group, that is carbonyl group, and this is second functional group that is also carbonyl group. If you consider the relative position, this is position number 1, this is position number 2, and this is 3. This is their relative position. You will start numbering from any one carbon or the carbon atom of any one functional group. So this is one of the example of 1,3-difunctionalized compound. These R groups may be similar or different. In this compound, these two R groups are different. This is R1, this is R2, this is R, and this is R. These two groups are almost same. So these R may be different or same. Okay. The most common examples are 1,3-dioxygen compounds. In this case, we have 1,3-dicarbonyl compounds. This is the example of 1,3-dicarbonyl compound. Beta ketoesters, beta hydroxycarbonyl compounds. 1,3-difunctionalized compounds involve CC disconnections, CX disconnections, and di-O disconnections. The CC disconnections are very common in 1,3-difunctionalized compounds. Common strategies or guidelines used for disconnection in 1,3-difunctionalized compounds. अब हम देखते हैं कि 1,3-difunctionalized compounds की रेट्रोसिंथेसिस के लिए, उनकी डिस्कनेक्शन के लिए कौन सी कॉमन गाइडलाइंस यूज होती है, जिन गाइडलाइंस को यूज करके हम उस टारगेट मॉलिक्यूल को प्रॉपरली लॉजिकल रूट के थ्रू डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. First of all, most common route for forward synthesis of 1,3-dicarbonyl compound is Claisen condensation. This is one of the type of reaction related to aldol condensation. This is one of the name reaction related to aldol condensation. Therefore, we disconnect the target molecule with respect to Claisen condensation. You know about Claisen condensation. The synthetic equivalents are a enolizable carbonyl compound that may be ester, aldehyde, or ketone, and an ester for attack of phenol or enolate ion. यानी यहाँ पे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे इस केस में, क्योंकि हम क्लेजन कंडेंसेशन को फॉलो करेंगे, तो इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आएंगे हमारे पास, वो एक तो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होगा. अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और एस्टर, लेकिन उसमें एटलीस्ट वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को होना ज़रूरी है. अगर अल्फा हाइड्रोजन उसमें मौजूद होगा एस्टर में, एल्डिहाइड या कीटोन में, तो फिर उसकी इनोलाइजेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि इनोलाइजेशन में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होता है, तो उसका प्रेजेंट होना यहाँ पे ज़रूरी है.
उसके बाद सेकंड आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन सा होगा, क्योंकि इसमें दो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो यूजुअली आपस में रिएक्ट करते हैं। तो दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो हमारे पास एस्टर होगा। ठीक है, एस्टर किस लिए यूज होता है? फॉर अटैक ऑफ इनोल और इनोलेट आयन, यानी यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड से आप इनोल या इनोलेट आयन बनाएंगे उसका आपने इस पे अटैक करवाना होता है। The product of Claisen condensation is a beta keto ester or a beta diketone। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो टारगेट मॉलिक्यूल आमतौर पर हम लेते हैं वो क्या होता है? वो बीटा कीटो एस्टर होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि बीटा कीटो एस्टर जैसे टारगेट मॉलिक्यूल भी 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में कंसिडर किए जाते हैं। In simple, for disconnection retrosynthesis of target molecule, we go through reverse of Claisen condensation. This is not words, इसको यहाँ पे इग्नोर करें और इसको बल्कि डिलीट कर दें, इसको कंसिडर ना करें। सेंटेंस होगा, इन सिंपल फॉर डिस्कनेक्शन रेट्रोसिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल वी गो थ्रू रिवर्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। यानी जब आप टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा बीटा कीटो एस्टर जैसा टारगेट मॉलिक्यूल या बीटा कीटो एस्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप क्लेजन कंडेंसेशन का रूट फॉलो करेंगे, यानी उसके रिवर्स में आप जाएंगे। तो डेफिनेटली रिवर्स में आप फिर उसके रिएक्टेंट की तरफ जा रहे होते हैं, स्टार्टिंग मटीरियल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आपने उस रिएक्शन को ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड में आप इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो फिर रेट्रो इसकी करनी बहुत आसान हो जाती है। द सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट अलॉन्ग विद इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड में बी एसिड एलाइड, दिस देयर शुड बी BE may be acid halide instead of ester for synthesis of 1,3-dicarbonyl compounds। यहाँ पे जो सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, एक तो आपके पास फर्स्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि आपको इनोल या इनोलेट आयन तो चाहिए होता है, तो वो आपके पास एस्टर से बन सकता है, एल्डिहाइड से या कीटोन से। अब जो दूसरा यहाँ पे आप एस्टर यूज कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ एस्टर that may be acid halide, वो आप acid halide भी यूज कर सकते हैं for synthesis of this type of compound। अगर आपके पास जो है वो दूसरा जो acid halide है तो उसका halide में हेलोजन जो है वो लीविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आप जब एस्टर यूज करेंगे तो एस्टर का जो OET ग्रुप होता है या OR ग्रुप होता है वो भी एक लीविंग ग्रुप होता है, वो रिमूव हो जाता है, तो इस तरह हेलोजन भी रिमूव हो सकता है। X जो है वो हेलोजन के लिए यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ एस्टर ऑफ एसिड हैलाइड भी यूज कर सकते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर तो आप इस रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड के लिए दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसिड हैलाइड भी हो सकता है। सिंथोन्स फॉर्म्ड विद नेचुरल पोलैरिटीज। अब यहाँ पे अननेचुरल पोलैरिटी का सिंथोन नहीं बनेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1,3-डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में नेचुरल सिंथोन बनते हैं, अननेचुरल सिंथोन नहीं बनते। अननेचुरल सिंथोन कौन से होते हैं? जिनमें अननेचुरल पोलैरिटी होती है। जिस तरह आप कार्बोनिल पे आप नेगेटिव चार्ज लगा लेते हैं तो वो अननेचुरल पोलैरिटी है, पॉजिटिव लगाते हैं तो वो नेचुरल है। तो इस केस में आपको नेचुरल पोलैरिटीज के सिंथोन मिलेंगे, अननेचुरल के नहीं मिलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड थ्रू अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन, जब आप अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, फिर आप उसकी डीहाइड्रेशन करते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है तो उसको हम अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। सो डिस्कनेक्शन शुड बी कैरीड आउट इन सच ए वे दैट एट द एंड we get a enolizable carbonyl compound and
an aldehyde or ketone for attack of enol or enolate ion. डेफिनेटली अगर आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका मतलब ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्टेंट की तरफ आप जाएंगे। तो उसके रिएक्टेंट आमतौर पर कौन से होते हैं? एक तो आपका इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होता है, दूसरा आपके पास यूजुअली एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? वो जनरली जो है वो हम अटैक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये अटैक ऑफ इनोलेट आयन के लिए, इनोल या इनोलेट आयन के अटैक के लिए हम आमतौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी उसका जो कार्बोनिल होता है उसके ऊपर इनोल या इनोलेट आयन अटैक करेगा। Generally, three types of target molecule are disconnected according to the guideline for 1,3-difunctionalized compounds. Generally, three types of target molecule. यहाँ पे आप off लिख लें. This is off. This is not or. This is off. Generally, three types of target molecule are disconnected according to the guideline for 1,3-difunctionalized compounds. तीन किस्म के टारगेट मॉलिक्यूल आमतौर पर जो है वो 1,3-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में कंसिडर करते हैं हम, और इनकी हम डिस्कनेक्शन करेंगे। एक हमारे पास 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन भी हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा टाइप कौन सा होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें एक ऑक्सीजन OH की फॉर्म में हमारे पास, तो दिस इज बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल। नाउ दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इनोन, दैट इज आल्सो नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनोन जो है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो तीन किस्म के 1,3-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड जो है उनको हम इस कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं। अब ये वाला जो है ये अगर डायरेक्ट आप देखें, दिस इज नॉट 1,3-डाइऑक्सीजन कंपाउंड, बट व्हेन यू विल डिस्कनेक्ट दिस कंपाउंड, you will carry out the retrosynthesis of this compound. First of all, you will convert it into बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल की डीहाइड्रेशन से बनता है, यानी इसकी अगर आप डीहाइड्रेशन करेंगे तो उससे ये बन जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसकी डिस्कनेक्शन आप देखें यहाँ पे आपने दो जो कार्बोनिल ग्रुप है उनके दरमियान से डिस्कनेक्शन करनी होती है, यानी या तो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं या यहाँ से। तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, तो इन ग्रुप्स का आपस में यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, कौन सी गाइडलाइन आप यूज कर रहे हैं? 1,3-डाइओ, दिस इज 1,3-डाइऑक्सीजन कंपाउंड। तो इससे पहले आपने 1,2-डाइऑक्सीजन कंपाउंड लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। तो दिस इज 1,3-डाइऑक्सीजन कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे एरो पे आप लिखेंगे 1,3-डाइओ, हियर O इज कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो सिंथोन बनेंगे, सबसे पहला सिंथोन है नेचुरल पोलैरिटी के साथ, ये नेगेटिव सिंथोन है और ये पॉजिटिव, तो ये भी नेचुरल पोलैरिटी के साथ है और ये भी दूसरा भी नेचुरल पोलैरिटी के साथ है। तो अब ये वाला सिंथोन कहाँ से आता है? ये एक्चुअली आपके इनोलेट आयन को शो कर रहा है, तो ये इनोलेट आयन से आएगा। तो अब इनोलेट आयन कहाँ से आता है? इनोलेट आयन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से आता है, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। यानी यहाँ पे अगर आप CH3 कंसिडर कर रहे हैं तो इधर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो जब इनोलाइजेशन होगी तो उसके बाद बेस के साथ तो ये इनोलेट बनेगा, तो ये वाला सिंथोन आपका इससे आएगा। इसी तरह दूसरा सिंथोन यहाँ पे हम जो है वो एस्टर से लेते हैं। अब इसमें एस्टर में क्या होगा कि यहाँ पे OR लगा देंगे, नेगेटिव ग्रुप है, ये पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव ग्रुप लगाना है OR, और दूसरा आपके पास जो है वो नेगेटिव ग्रुप जो है वो हैलोजन भी हो सकता है। तो आपके पास स्टार्टिंग मटीरियल इसके लिए एस्टर भी हो सकता है और एसिड एलाइड भी हो सकता है। तो ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड के जो आप सिंथोन बनाएंगे, बल्कि उनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे,
तो उनमें एक तो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड वो तो मस्ट है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एस्टर भी ले सकते हैं और एसिटाइल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में इसमें OR लीविंग ग्रुप है, इसमें X लीविंग ग्रुप है। इसी तरह आप देखें 1,3 दूसरा जो आपका कंपाउंड हमने कंसिडर किया है, क्योंकि हमने दूसरी टाइप डिस्कस की थी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी इस कैटेगरी में होते हैं, तो इनकी डिस्कनेक्शन भी देखें आप उसी पोजीशन से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इस यहाँ से भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और यहाँ से भी, बट द मोर सुटेबल पोजीशन इज दिस वन, क्योंकि ये वाली जो आपके पास जो पार्ट आएगा यहाँ पे, ये इट विल कम फ्रॉम इनोल और इनोलेट आयन, ये आपके पास इनोल या इनोलेट आयन से आएगा, यानी ये नेगेटिव सिंथोन है आपका, तो ये इनोल इनोलेट आयन को शो कर रहा है। उसके बाद अब ये आएगा कहाँ से, ये वाला पार्ट, दिस विल एक्चुअली कम फ्रॉम, यानी इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, वो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड होगा। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड से आएगा, यानी यहाँ से ये वाला पार्ट आपका जो है वो एल्डिहाइड से आ रहा है, इधर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये वाला पार्ट आपका एल्डिहाइड से आ रहा है और ये वाला पार्ट आपका कीटोन से आ रहा है। तो ओवरऑल यानी अल्डोल कंडेंसेशन के रूट, अगर आप उसका रूट देखें तो उसमें सबसे पहले ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, तो ये वही वाला बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसकी बाद में आमतौर पर डीहाइड्रेशन होती है, फिर भी ये इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इस केस में जो है वो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इनोन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप FGI करेंगे, दिस इज FGI, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लें FGI। तो आपने FGI इसका किया तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर लें, फिर रेट्रो कर रहे हैं आप इसकी, तो यहाँ पे फिर इसकी फर्दर जो डिस्कनेक्शन होगी वो इसी की गाइडलाइन आप यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसको, इस तरह ये भी होगा। तो 1,3 डाई और रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो 2 सेंथोन आएंगे दोनों नेचुरल पोलैरिटी के साथ, जो इससे आ रहे हैं वही इसी से आएंगे और इनके सोर्सेज यही हैं यहाँ पे। तो 3 किस्म के कंपाउंड 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड में हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं और इनकी रेट्रोसिंथेसिस और फॉरवर्ड सिंथेसिस जो है वो एक ही जगह पे हम डिस्कस करते हैं, यानी एक ही टॉपिक इनके लिए कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि इनका रिलेशनशिप सेम बन रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी ये कैटेगरी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाली फर्स्ट कैटेगरी। एग्जांपल नंबर 1-phenyl butane 1,3-dione. This compound is used in perfumes. This is actually application of Claisen condensation. Claisen condensation जो है वो उसकी ये एक एप्लीकेशन है, और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस। क्लेजन कंडेंसेशन की एप्लीकेशन का मतलब है कि इसमें इसकी जब आप फॉरवर्ड सिंथेसिस करेंगे तो इसमें क्लेजन कंडेंसेशन ये रिएक्शन यूज होता है इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस में, इसको बनाने के लिए। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि आप इधर से या इधर से डिस्कनेक्शन करेंगे, तो आपने यहाँ से डिस्कनेक्शन करनी है 1,3 डायो, यानी ये कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला नेगेटिव सिंथोन बनेगा, ये पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव सिंथोन है वो बेसिकली किससे आएगा, इनोल या इनोलेट आयन से आएगा। तो यहाँ पे ये इनोलेट आयन हम शो कर रहे हैं, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये तो आप जस्ट सिंथोन बना रहे हैं, अब उसको आप शो कर रहे हैं कि ये इनोल या इनोलेट आयन से आ रहा है। तो अब ये इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन की जो है वो 2 जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी गई है, एक पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक में कार्बन पे। तो आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर हैविंग द नेगेटिव चार्ज एट कार्बन एटम, यानी ये मोर फेवरेबल है, तो इसीलिए मोस्टली इसकी जगह पे हम ये भी लिख देते हैं। इसी तरीके से जो है वो दूसरा जो सिंथेटिक सिंथोन है, तो
नेचुरल पोलैरिटी के साथ। तो ये कहाँ से आएगा, एस्टर से आएगा। क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन की बेस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एलोजन नहीं लगाएंगे, OET लगाएंगे। इसी तरह ये किससे आएगा, दैट विल कम फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये बेंजल्डिहाइड। और इसमें यहाँ पे जस्ट इस पोजीशन पे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, इट्स फॉरवर्ड सिंथेसिस। फॉरवर्ड सिंथेसिस में सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें आप जो है वो 2 कार्बोनिल कंपाउंड की कंडेंसेशन कर रहे हैं। एक आपके पास जो बेंजल्डिहाइड है, दूसरा इथाइल एसीटेट है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो आपके पास जो है एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो है वो आपका जो फर्स्ट स्टेप में जब आप इनोल या इनोलेट आयन का अटैक करवाते हैं तो ये जो OET ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है यहाँ पे, उसकी जगह ये ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, यानी इसको सब्सटीट्यूट कर लेता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब OET इसमें मौजूद नहीं है, वो रिमूव हो जाता है और इसकी ये वाली पोजीशन इसने यहाँ पे टेक किया हुआ है। तो अब आपके पास ये कौन सा कंपाउंड बन गया, 1,3 डाइकार्बोनिल। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले आप जो है वो जो इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड है उसको आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे, उससे प्रोटॉन निकालेंगे तो उससे इनोलेट आयन बनेगा। अब इस इनोलेट आयन को जो है वो आप इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ आप सोडियम को लिख दें, उसको स्टेबलाइज करेगा। इसी तरीके से इनोलेट आयन जो है उसका किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप अटैक करवाएं कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरे जो आपका एस्टर है उसके कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो पहले तो इसकी एडिशन हो जाएगी, यानी ये डायरेक्ट रिमूव नहीं होता, पहले एडिशन होती है फिर रिमूवल होता है, यानी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। तो ये ऐड हो गया, उसके बाद जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज यानी इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास ये वाला OET यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो NaOET यानी जो आपने यहाँ यूज़ किया था बेस वो रिमूव हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो जब यह रिमूव हो जाएगा तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब चूंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे इस तरह कंसिडर किया जाता है, ये देखें आपके पास इनोलाइजेशन हो रही है तो ये दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद ये इनोलेट आयन जब बन जाता है तो इसका अटैक जब होता है इसके ऊपर ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ओवरऑल दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करते हैं। यूजुअली इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जनरली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट यू कैन improve your reaction towards the products by applying certain factors. Okay, example number 2, ethyl 3-oxobutanoate। तो ये भी एप्लीकेशन है क्लेजन कंडेंसेशन की, रेट्रोसिंथेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली बीटा कीटो एस्टर। तो वो आपके पास डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, तो ये आपके पास एस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बीटा कीटो एस्टर को भी आप डिस्कनेक्ट, अब यहाँ पे आपने इसे कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह से भी आप डिस्कनेक्ट इसे नहीं कर सकते, इतना फेवरेबल नहीं होगा आपके लिए, ये पोजीशन इसकी ज़्यादा फेवरेबल है। उसकी वजह क्या है, आपके पास 2 सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे। तो इस तरह का रूट बहुत फेवरेबल होता है जिसमें सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाए, तो वो डिस्कनेक्शन और वो जो डिस्कनेक्शन का रूट होता है दैट इज मोर फेवरेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें ये 2 सेम जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये पोजीशन है ये आपको सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट दे सकती है। तो जब यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये नेचुरल पोलैरिटी का सिंथ्रोन आपके पास, इधर आप OET लगा दें यानी ये एस्टर से आएगा। तो इसी तरीके से दूसरा जो आपके पास इनोलाइजेबल एस्टर हो जाएगा, तो ये किससे आएगा, इथाइल एसीटेट से। तो यानी ये भी इथाइल एसीटेट से आएगा और ये भी इथाइल एसीटेट से। इसका मतलब ये है कि दिस इज द सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्कनेक्शन में 1,3-डायो, दिस इज आल्सो 1,3-डायऑक्सीजन कंपाउंड, तो इसलिए 1,3-डायो आपने एरो के ऊपर मेंशन करना है। आप डिस्कनेक्शन यहाँ पे कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं।
ओके ओके example number 2, forward senses. Now it's corrected, it is actually forward senses. फॉरवर्ड सेंसेस में इथाइल एसीटेट की जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन करनी है, सोडियम इथोक्साइड की मौजूदगी में ग्लेजन कंडेंसेशन है, तो आपके पास जो है वो बीटा कीटो एस्टर बन जाता है। इसको आप इस तरह ड्रा करें, ये इस तरह, एक ही बात है, स्टार्ट में आपको ये इस तरह बताया गया है, तो आप दोनों तरह इसको ड्रा कर सकते हैं। इसको आप इग्नोर कर दें, ये इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले उसी तरह इनोलाइजेशन आपने करनी है, इनोलेट आयन बनाना है, और इनोलेट आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, और उसके बाद एडिशन हो जाएगी। एडिशन के बाद इसके ऊपर क्योंकि एडिशन हो रही है, तो ये वाला जो OET है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो इथाइल 3-ऑक्सो ब्यूटानोआइड बन जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। आफ्टर दैट एग्जांपल नंबर 3। Okay, example number 3 in this case is, this is also example of 1,3-dicarbonyl compound, 2-phenyl 2H and dene 1,3-dione. This is actually phenyl, a rat poison. This is one of rat poison. It is used for killing rat. रेट्रोसिंथेसिस इसकी सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 3 कार्बोनिल कंपाउंड आपको, दिस इज एक्चुअली ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन आप उसमें रिलेशनशिप जो है वो 1-3 बन रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप ओवरऑल 1-3 आ रहा है, आप देख सकते हैं 1-2-3 1-2-3, इनका भी आपस में 1-2 किसी कोई से दो का आप देखें 1-3 रिलेशनशिप बन रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप दो रूट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एक ये A रूट है और एक B रूट है। तो सबसे पहले हम इसको A रूट से देखते हैं। A रूट से जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, तो आपके पास जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, डेफिनेटली ये इनोलाइजेबल पोजीशन बनेगी, तो ये एक डायकीटोन बन जाएगा, 1,3 डायकीटोन। उसके बाद जो है वो साथ आपके एक एस्टर आ जाएगा, यहाँ पे OET लगा दें, ये एस्टर आ जाएगा। दूसरा जो नहीं, इसका जो सेंथोन है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होगा। उसके बाद आप इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ आल्सो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, तो इसकी फर्दर आप डिस्कनेक्शन यहाँ से करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से एक ही बात है, जब यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे OET आएगा। तो उसी तरह जो आपको प्रीवियस गाइडलाइन मैंने 1-3 की बताई है उसी तरह ये। उसके बाद इसकी FGI कर लें आप, तो इस ग्रुप की FGI होगी तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली 2-एसिटाइल बेंजोइक एसिड। उसके बाद इसकी फर्दर FGI आप करेंगे तो यहाँ पे इस ग्रुप की FGI होगी, तो एसिड ग्रुप किससे आता है, मिथाइल से आता है, और उसकी फिर CC डिस्कनेक्शन कर लें, एसिटाइल को रिमूव कर लें, टॉल्यूइन इज इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटीरियल। ये जो एस्टर है आपके पास, इसकी फर्दर आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, वैसे तो ये अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आप फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं तो इसकी FGI कर लें।
और उसके बाद ये FCI करेंगे तो एसिड एस्टर एसिड से आता है, और उसके बाद जो है वो एसिड की फर्दर FCI करेंगे तो एसिड यहाँ से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आ सकता है, प्राइमरी अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। वैसे तो ये एल्डिहाइड में पहले चेंज होगा, लेकिन फर्दर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी एसिड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसकी यहाँ से आप CC डिस्कनेक्शन करेंगे, तो दिस इज़ वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन। तो इसकी CC डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड और साथ दूसरा जो पार्ट होगा वो आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, यहाँ पे आर्गेनो लिथियम हम ले रहे हैं, तो ये किससे आएगा फिर टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आ जाएगा। उसके बाद बी रूट को अगर आप देखें तो बी रूट इज़ एक्चुअली मोर फेवरेबल, दैट इज़ बेस्ट रूट, क्योंकि जो साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे वो इजी होता है। यहाँ पे तो साइक्लाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें साइक्लाइजेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, लेकिन इस साइक्लाइजेशन से यहाँ पे ये वाली साइक्लाइजेशन इस केस में इजी होती है। यहाँ पे तो लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जस्ट आपका जो इनोलेट आयन है, इनोल है, वो इधर अटैक करेगा, लेकिन इस केस में आप यहाँ से साइक्लाइजेशन करेंगे, जो आपका लास्ट स्टेप होगा फॉरवर्ड सिंथेसिस का, जो आपका लास्ट स्टेप होगा उसमें आप साइक्लाइजेशन करेंगे। तो ये जो साइक्लाइजेशन वाला ये वाला जो स्टेप है, इसको जब आप फॉरवर्ड में करते हैं, दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज मोर फेवरेबल, मोर सुटेबल। इस वजह से इस रूट को हम फेवरेबल कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, that this route is not favorable as compared to this one। यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन हो सकती है, इससे इनोलेट बनेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इस केस में जो है जो इनोलेट यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिडिटी इससे बहुत ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिटी कम होगी। यहाँ पे जस्ट एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से अब इसका इनोलेट बहुत इजीली बनेगा, इसका यानी जो इनोलेट है यानी जो कंजुगेट बेस यहाँ पे बनेगा प्रोटॉन ले जाने से, वो स्टेबल है, तो इसलिए वो आसानी से बनेगा और रिएक्शन आपका फेवरेबल है, फास्ट होगा, और इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो OET आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी एसिडिटी इस जगह पे कम है, तो ये जो साइक्लाइजेशन होनी है ये इस लिहाज से अगर इनको आपस में कंपेयर आप करें यहाँ पे, तो ये वाला जो है वो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस इज मोर फेवरेबल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर 1,3 डाई, वो आप करेंगे स्टिल इट इज़ 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद जो है ये OET हो जाएगा, इधर आपका एस्टर ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद फर्दर FCI आप करेंगे, दिस इज एक्चुअली डाइएस्टर, बेंजीन के ऊपर 2 एस्टर ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद ये एसिड से आते हैं, और एसिड की आप FCI कर लें तो एसिड का जो एसिड ग्रुप होता है, यानी यहाँ पे COOH ग्रुप है, दैट विल कम फ्रॉम मिथाइल ग्रुप। मिथाइल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे ये एसिड ग्रुप आ जाता है, तो ये एक्चुअली ज़ाइलीन है, तो इसको आप टल्वीन से बना सकते हैं। ये बेंजीन की पहले आप मोनोमिथाइलेशन करें फिर डाईमिथाइलेशन करें तो उसे ज़ाइलीन बन जाएगा। दिस इज़ ईजिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटीरियल, इसको भी एज ए स्टार्टिंग मटीरियल आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये वाले जो आपके यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, इनको भी स्टार्टिंग मटीरियल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आप सिंपल कंपाउंड की तरफ आएंगे तो आपके पास सिंपलेस्ट कंपाउंड इस केस में बेंजीन बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो आपका यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो कीटोन होगा, मोनोकीटोन है। तो ये वाला जो मोनोकीटोन है एक्चुअली दिस इज पिनाकोलोन, दिस पिनाकोलोन कम फ्रॉम पिनाकोल। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसका ये प्रोडक्ट होता है, यानी पिनाकोलोन उसका प्रोडक्ट होता है, तो ये इससे आएगा। तो ये किससे बनता है एक्चुअली, पिनाकोल से, जो कि डायोल होता है, और ये डायोल आमतौर पर अल्कीन से बनता है। अल्कीन की हाइड्रोजाइलेशन करते हैं, यानी अल्कीन की आप डाईहाइड्रोजाइलेशन कर लें, हाइड्रोजाइलेशन मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप अल्कीन पे लेके आते हैं तो उसमें आपके पास डायोल बन जाता है। उसके बाद अल्कीन कहाँ से आता है, अल्कीन का जो बेस्ट सोर्स है वो है वेटेज रिएक्शन। तो वेटेज रिएक्शन से आप इस साइड से आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लें और दूसरी साइड से आप अल्काइल हैलाइड ले लें, तो वेटेज रिएक्शन से आपके अल्कीन जो है वो वेटेज रिएक्शन से आएगा, फिर अल्कीन की हाइड्रोजाइलेशन करेंगे
और उसको पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। दिस इज अबाउट पी-वाल। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, फॉरवर्ड सेंसेस। इसकी फॉरवर्ड सेंसेस हम कैसे करेंगे? बेंजीन वाला रूट हम फॉलो कर रहे हैं, यानी ये जो बेस्ट रूट था ये वाला, इसको हम फॉलो करेंगे, रूट बी, दिस वन। इसका हमने कहा है कि ये फेवरेबल है, तो इस रूट को, इसकी बेस पे हम फॉरवर्ड सेंसेस कर रहे हैं इस रूट के थ्रू। सबसे पहले बेंजीन की आप मिथाइलेशन कर लें, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, टॉल्वीन बन जाएगा। उसके बाद इसकी फर्दर मिथाइलेशन करें, आर्थो पोजीशन पे ज़ाइलीन बन जाएगा, आर्थोज़ाइलीन। उसके बाद जो है वो इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें दोनों ग्रुप की, तो एसिड बन जाएगा। और फिर इसकी एस्टरिफिकेशन हम करते हैं तो एस्टर बन जाता है। और उसके बाद जो है वो हम दूसरा जो हमें कंपोनेंट चाहिए वो ये वाला चाहिए, कीटोन चाहिए। तो इसको हम कैसे बना रहे हैं? एसीटोन को यहाँ पे हम 2-ब्रोमोप्रोपेन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो n-ब्यूटाइल लिथियम की मौजूदगी में वेटेज रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो अल्कीन बन जाएगा। उसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनके कम्बिनेशन से या KMnO4 NaOH कोल्ड फॉर्म में लेंगे, हाइड्रोजाइलेशन का रिएक्शन होगा। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। अब इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजाइलेशन भी कह सकते हैं, डाइहाइड्रोजाइलेशन। ओवरऑल आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप दो हाइड्रोक्सिल लेके आ रहे हैं, तो आप डाइहाइड्रोजाइलेशन भी इसे कह सकते हैं, सिंपली आप हाइड्रोजाइलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल यानी आप अल्कीन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आप डायोल बना रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप KMnO4 से भी बना सकते हैं और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2O2 इनको मिला के, ये दोनों एक जगह पे, ये दोनों रिएजेंट, यानी अगर आप ये यूज़ करेंगे तो उसके साथ ये भी यूज़ होगा, तो ये आपके पास डायोल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है ये वाला कम्बिनेशन है KMnO4 वाला। तो उसके बाद जो है वो डायोल जब बन जाएगा तो आप पिनाकोल पिनाक्लोन, PPR मीन पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, तो ये आप एसिड की मौजूदगी में करते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आमतौर पर यूज़ होता है। इसमें आप एक OH ग्रुप जो है उसकी प्रोटोनेशन करेंगे, वो H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर दूसरे कार्बन का मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब कार्बन के बॉन्ड कम होंगे तो ऑक्सीजन अपना पेयर दे देगा और लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी, तो आपके पास ये कीटोन बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी अल्फा पोजीशन स्टेरिकली हैंडल्ड है, तो इस वजह से आमतौर पर ये बाकी मेथड से इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस मेथड से आप इजीली इसको सेंसाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब इन दोनों को आपने मिलाना है आपस में, ठीक है। ये आपने पहले बनाया फिर ये बनाया, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इसमें जो है वो हम जो है वो इस कंपाउंड के, यानी ये वाला जो है, इसकी इनोलाइजेशन कर लेते हैं इस पोजीशन के। अब यहाँ पे तो एस्टर हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपके पास मिथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, देयर इज नो हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन। तो आपके पास सिर्फ ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनमें से एक हाइड्रोजन बेस के साथ जाएगा और ओवरऑल ये न्यूक्लियस कंडेंसेशन यहाँ पे भी आप कर रहे हैं। तो इसका अटैक करवाएंगे इस किसी एक के ऊपर, ये दोनों सेम है, किसी एक के ऊपर आप अटैक करवा लें। लेट से आप इस पर अटैक करवा रहे हैं, इधर से OET निकल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड 1,3 कार्बोनिल बनेगा। उसके बाद साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप। इसको बेस के साथ ट्रीट करें, इनोलाइजेशन होगी, इनोलेट आयन बनेगा, ये इनोलेट आयन इधर कार्बोनिल पे अटैक करेगा, OET निकल जाएगा, यानी ओवरऑल आपके पास सोडियम एथोक्साइड निकल जाएगा। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा, दैट इज योर टारगेट मॉलिक्यूल, दैट इज रेड पॉइजन। ओके, नाउ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज सेकंड कैटेगरी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। नाउ लुक एट दिस टारगेट मॉलिक्यूल, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, इस पे OH है। दिस इज एग्जांपल नंबर 4, 5 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑन। रेट्रोसिंथेसिस की देखें, इसको भी आप जो है वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था जर्नल गाइडलाइन में कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसको आपने जो OH वाला कार्बन होता है उससे आपने इसे डिस्कनेक्ट करना होता है, यानी जो कार्बन जो है वो नेक्स्ट टू OH कार्बन होता है और जो OH वाला कार्बन है उनके दरमियान से आपने डिस्कनेक्शन, यानी दिस इज द फेवरेबल पोजीशन फॉर डिस्कनेक्शन।
तो अब इसका ये इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड बन गया आपके पास, और इसके ऊपर अटैक होगा यहाँ पे, यानी ये इसके कार्बोनिल पे अटैक होगा फॉरवर्ड सिंथेसिस में। तो दिस इज 1,3-डायो। उसके बाद इसकी फर्दर आप FTI कर लें। ये चूँकि अब ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, दीज टू आर सिमिलर कंपाउंड, सिमिलर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे इथाइल एसीटेट बन रहा था, सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट था एक एग्जांपल में प्रीवियस स्लाइड में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इस वजह से ये बहुत फेवरेबल बन रहा है। अगर आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे। तो ये वाली पोजीशन आपके पास सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको दे रही है, सो दिस रूट इज मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद इसकी आप FTI कर लें, तो जब आप इसकी FTI करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FTI अब एक्चुअली किसकी कर रहे हैं, कार्बोनिल की OH में चेंज हो जाएगा उसकी। अब आप 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज 1,1,CC डिस्कनेक्शन। तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, एक आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और दूसरा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला पार्ट एल्डिहाइड बनेगा, ये आर्गेनो मैग्नीशियम बनेगा। नाउ इट्स फॉरवर्ड सिंथेसिस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, उसको आप ग्रिग्नार्ड में पहले चेंज करेंगे, और उसके बाद उस ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ, उसके ऊपर अटैक करेगा, एडिशन होगी। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर इस अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करें K2Cr2O7 को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन में आपके पास जो है वो क्या बनेगा, ओवरऑल कीटोन बन जाएगा, मोनोकीटोन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी दिस पोजीशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये यहाँ से डी हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपके पास जो है वो नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने सोडियम इथोक्साइड के साथ इसे ट्रीट करना है, तो आपने सेकंड मॉलिक्यूल इसी तरह का लेना है। डेफिनेटली इसको भी इसी रूट से आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो एक को आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो आपने जस्ट रूट बताना है कि ये कंपाउंड, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दो बनाएंगे तो तब आप रिएक्शन करेंगे। आप जस्ट शो कर सकते हैं कि इस तरह का एक और मॉलिक्यूल इधर यूज़ होगा। सोर्स उसका भी यही है, डेफिनेटली सेम मॉलिक्यूल है, सेम सोर्स होगा। उसके बाद इसकी आप जो है वो जस्ट जो है वो इनुलेट आयन इसका बनाएंगे और इसके ऊपर अटैक करवाएंगे इसके कार्बोनिल के ऊपर, तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, थर्ड कैटेगरी है ये हमारे पास, जिनको हम इनोन्स भी कहते हैं। Dehydration of beta hydroxycarbonyl compound is very easy because the proton to be removed is acidic, enolic proton इसे हम कहते हैं, and product is conjugated। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो जब आप उसकी रेट्रो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैरी आउट द FGI, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। उसकी ऑलरेडी गाइडलाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरह हम फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उसको सिंपल स्टार्टिंग मटीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है उसका भी सोर्स आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है, और आमतौर पर जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है वो अल्डोल कंडेंसेशन के दौरान बनता है, और ये आमतौर पर जो है ईजीली जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस OH का भी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कंसिडर होगा, लेकिन इस कार्बोनिल का भी इफेक्ट है। डेफिनेटली इसमें रेजोनेंस भी होगी यहाँ से कार्बोनिल के साथ, तो इस वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये हाइड्रोजन जाएगा और ये OH जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। सेकंड रीज़न इज कंजुगेशन। तो आप जानते हैं कि जो कंजुगेटेड प्रोडक्ट होता है वो आमतौर पर स्टेबल होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंजुगेशन आएगी तो ये भी एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है, तो जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में कन्वर्ट होने के लिए। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5 जो कि इनोन की एग्जांपल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इसकी सबसे पहले आप FGI करें, फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। उसके बाद डेफिनेटली FGI करेंगे तो ये किससे आ रहा है, ये वाला ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल से आ रहा है। और उसके बाद जो है इसकी आप यहाँ से CC डिस्कनेक्शन करेंगे, ऑलरेडी आपको बीटा हाइड्रोक्सी को बताया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है ये एसीटोन से आएगा। अब ये पार्ट भी आपका एसीटोन से आएगा, डेफिनेटली ये भी एसीटोन ही बनेगा और ये भी एसीटोन बनेगा। तो आपके पास जो है ओवरऑल यानी यहाँ पे ये नेगेटिव सिंथोन बनेगा, ये पॉजिटिव, तो सोर्सेज दोनों के एसीटोन होंगे, तो इट इज़ मोर फेवरेबल। यहाँ पे ये इस लिहाज से बहुत फेवरेबल है। अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे, याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो फिर आपको ये सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे, इसलिए ये वाला रूट आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। दिस रूट इज़ मोर फेवरेबल हेयर। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस हम इसकी देखते हैं। एसीटोन को लिया, उसको आप एक्टिवेट करने के लिए पहले उसकी ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करेंगे, तो ये इसकी रेजोनेंस करें, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। यानी आपने इसके कार्बोनिल को एक्टिवेट कर दिया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। तो इधर से फिर जो Cl है, जो कंजुगेट बेस होता है, वो अटैक करता है H के ऊपर, इसको रिमूव कर देता है। ये आप वाटर से भी इसका अटैक शो कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में रिएक्शन हम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से इसका डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, जो आपके पास इनोल। तो अब आप जानते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो इनोल होता है, और बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इनोलेट आयन होता है। उसके बाद जो इनोल है उसका हम अटैक करवाएंगे कार्बोनिल पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और आपके पास जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये इधर शिफ्ट होगा तो आपका जो इस पोजीशन का इधर अटैक हो रहा है, तो इधर प्रोटॉन को भी हम शिफ्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला यानी जो प्रोटॉन है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। जाहिर है आप अटैक करवाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव, तो एक स्टेप में प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट किया हुआ है इसको। उसके बाद जो है वो इसकी आप प्रोटोनेशन करेंगे, बिकॉज यू हैव टू रिमूव दिस OH ग्रुप। तो इसकी प्रोटोनेशन करेंगे उसी तरह एसिड से। तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा वो प्रोटॉन को निकालेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और H2O निकलेगा, ओवरऑल इधर से H2O भी निकलेगा और साथ HCl भी निकलेगा। ये HCl भी निकल रहा है और साथ H2O ये दिखाई दे रहा है आपको, H2O भी रिमूव हो रहा है, HCl भी रिमूव हो रहा है, और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6, 2 ethyl 3 propyl oxyren 2 carb oxamide or oxamide। इसकी रेट्रोसिंथेसिस हम देखते हैं। एक्चुअली ये ऑक्सीरेन डेरिवेटिव है। ऑक्सीरेन क्या होता है, 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो आमतौर पर ये सेचुरेटेड होता है, यानी फुली सेचुरेटेड होता है। तो अब ये सब्सटीट्यूटेड फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीरेन की इस पोजीशन पे इथाइल है, इस पे ये माइड ग्रुप लगा हुआ है, और इस पे आपके पास एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक हाइड्रोजन इधर मौजूद है, बाकी जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट हुए हैं, उनकी जगह ग्रुप मौजूद हैं। तो दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीरेन। तो इसलिए हम इसे कहते हैं 2 ethyl 3 प्रोपाइल ऑक्सीरेन 2 कार्ब ऑक्सामाइड। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रेट्रोसिंथेसिस के लिए आप डेफिनेटली ये एपॉक्साइड बन रहा है ये। तो इसको डिस्कनेक्ट आप कैसे करेंगे, तो एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से एपॉक्साइड बनता है, यानी अल्कीन को हम एपॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कीन की एपॉक्सीडेशन डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप डबल डिस्कनेक्शन कर लें, CO डिस्कनेक्शन यहाँ से भी करें, यहाँ से भी, यानी अल्कीन में ऑक्सीजन डायरेक्ट ही आता है आमतौर पर। तो आपके पास जो है वो ये इसका एपॉक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CO डिस्कनेक्शन से ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा आपके पास। डेफिनेटली जिस पोजीशन पे एपॉक्साइड बन रहा है तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप शो करेंगे रेट्रो में। यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी FGI आप कर लें। FGI कौन से ग्रुप की होगी, एमाइड की। तो एमाइड एसिड से आता है, और ये आपके पास बन जाएगा 2 ethyl X 2 इनोइक एसिड।
उसके बाद जो है वो आप फर्दर FTI करेंगे। अब आप किसकी FTI कर रहे हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पर पहुंच चुके हैं। दिस इज आल्सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बट इट विल कम फ्रॉम एल्डिहाइड, यानी ये जो एसिड ग्रुप है आपका एल्डिहाइड से आएगा, तो ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। इसकी आप फर्दर FTI करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हैं वो उनका सोर्स होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो FTI करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में चेंज कर देंगे, तो उसके बाद 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी एक्सेनल ये आपके पास। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ इस पोजीशन से OH जाता है ना, तो इस इधर से हाइड्रोजन जाएगा, तो इधर एक हाइड्रोजन आपने शो कर दिया, पहले इधर हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और साथ आपने इधर OH भी शो करना है। तो हाइड्रोजन इधर ऑलरेडी मौजूद था लेकिन आप OH नहीं था, तो OH आपने शो कर दिया। उसके बाद आप इसकी फर्दर 1,3 डायो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 1,3 डाइऑक्सीजन कंपाउंड। यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे एज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड बनेगा इस साइड से और इस साइड से भी एल्डिहाइड बनेगा। यू हैव सेम सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये भी ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, यानी ये ब्यूटेनॉल की सेल्फ कंडेंसेशन से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी आप जो है वो यहाँ पे डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आप इसको एमाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको इसकी एपॉक्सीडेशन करेंगे तो एपॉक्सीडेशन में आपके पास ये एपॉक्साइड बन जाए। नाउ इट्स फॉरवर्ड सिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्डिहाइड 2 सेम एल्डिहाइड हम ले रहे हैं, उनकी एल्डोल रिएक्शन उनका कर रहे हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बेस के तौर पर यूज होगा। उसके बाद आप इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला डेफिनेटली इधर से हाइड्रोजन जाएगा, इधर से OH डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। उसके बाद इसकी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेंगे बिकॉज आपके पास डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ऑक्सीडेशन इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है। इसीलिए आप कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें जो अल्कीन को अफेक्ट ना करे, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करे। तो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दें, एसिड ग्रुप में। तो अब यहाँ पे आप सिल्वर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, ये दिस इज Ag+1 Ag2O इसका फार्मूला है। तो सिल्वर ऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन, उसकी मौजूदगी में आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करें, आप एसिड ग्रुप को भी एमाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसके ऊपर आपने एपॉक्सीडेशन करनी है। तो एपॉक्सीडेशन के लिए एक मेथड जो है वो पर एसिड होता है, यानी पर एसिड को यूज करके एपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। दिस इज पर एसिड, दिस इज पर एसिड, इट मे बी पर एस्टिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। ये पर एसिड होगा तो उससे आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये क्या करता है, जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो ये पर एसिड एक ऑक्सीजन इसको देगा, ओवरऑल इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है, यानी एसिड इससे बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। ओवरऑल फिर एपॉक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ये आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एपॉक्साइड बन जाएगा, दिस इज एपॉक्साइड। ओवरऑल दिस रिएक्शन इज एपॉक्सीडेशन। This is end of today's lecture. Thank you.